Good morning, my dear lovely students. Very good morning to all of you, and thank you for coming up for this class so early in the morning. And welcome to all those teachers who are watching our online classes. So, today we are going to start with the first chapter of your main course book, and I'm telling you, you are going to enjoy it through and through. But before we begin, here are a few guidelines. Kindly refresh your screen if you cannot see or hear us properly. Keep refreshing अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है. And try to watch the class in the full screen. There is a square button in the down right corner of the YouTube window. So press it and then you can watch this screen on full. Then you got to use the chat justifiably. Just use it to ask your doubts and whenever you are asked to respond. And don't forget to tell your friends because these classes are going online and they are very, very beneficial for all of you. A very good morning, students, teachers, and all those who are watching this session live on YouTube. So, as Anjali said, this is our second session with all of you, and we are going to begin with our textbook Hornbill. And today, we are going to read and explore The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. I am your facilitator for today, Nandini Sarangal, that's me. And with me is Anjali Chauhan. So let's see who is this lady. But before that, let's meet the team. In our team, we have Nandini ma'am, our team leader, and me, Anjali Chauhan. Apart from us, there are 4 more members who are going to help you on YouTube chat box. That is Vandana Harith, Rajni Gemini, Sonia Makija, and Manish Sharma. Okay. So students, before we begin the chapter, the portrait of a lady, you can see on your screen there are two boxes. One, box A on the left side of the screen, box B on the right side of the screen. In box A, you can see a picture. Box B, there is some text, a description about this picture or about this lady. If I ask you, which out of these two is a portrait? I think the common answer would be, or the usual, or the most obvious answer would be this one, isn't it? Yes, this is a portrait. But if I tell you this is also a portrait, what do you say? You may ask me how, why. Yes, of course, a portrait is a painting, a drawing, or a photograph. But a portrait is also a verbal picture or description, usually of a person. And in this chapter, the chapter which we are going to discuss today, we are talking about the second box, box B. So, portrait of a lady is about a verbal picture or description, usually of a person. And who is this person? Of course, a lady. But who is this lady? Let's see. Okay, well, अभी हमने देखा कि title slide में we have written the portrait of a lady by Khushwant Singh. So who's this Khushwant Singh? Let's talk about this person first. He's a well-known Indian novelist and lawyer. बहुत famous है और इनके works में हमेशा you can find keen secularism, sarcasm and love for poetry. So जब आप इनके novels, इनकी books और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ये सारे words के meaning समझ में आ जाएंगे. अभी हम deep में नहीं जा रहे हैं, but अभी हम आपको कुछ hint trigger दे देते हैं. So these are his famous works: Mark of Vishnu, A History of Sikhs, Train to Pakistan, and believe me, he has received many awards like Padam Bhushan, Padam Vibhushan for this. So let's continue with our lesson. Yes, of course. So, let the story begin. So, we were saying the story is about a lady, the portrait of a lady. Okay, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. तो समझ में आ रहा होगा कि
पोर्ट्रेट जिनके बारे में है वो कौन है? वो खुशवंत सिंह, जो हमारे ऑथर हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं, उनकी दादी हैं. And he's saying that she had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. अब पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ, she had been old, काफी बूढ़ी हैं, wrinkled, उनकी काफी झुर्रियां हैं फेस पे. People said that she had once been young and pretty. अब लोगों का कहना है कि वो कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी, यंग, बहुत यंग और प्रिटी हुआ करती थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड. मतलब एक यंग खुशवंत सिंह के लिए, या खुशवंत सिंह जब छोटे बच्चे थे, तो कहते हैं कि मुझे ये भी विश्वास करना मुश्किल होता था कि शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. उनके लिए ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था. ओके बच्चों, आज एक जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम एक चीज और साथ साथ करेंगे. वो ये, आपको हर स्लाइड पे इस तरीके से येलो मार्कर से या येलो हाइलाइटर से आपको एक वर्ड जो है अंडरलाइन किया हुआ दिखेगा. दीज आर कंपाउंड वर्ड्स. अगर आप देखें, ग्रैंड मदर, तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, पर जब वो जुड़ते हैं तो एक नया मीनिंग बनाते हैं. वी कॉल देम कंपाउंड वर्ड्स. तो आज हम अपने इस चैप्टर में साथ साथ कंपाउंड वर्ड्स को देखते जाएंगे. वो क्यों देखेंगे वो जाके आपको लास्ट में पता चलेगा, बट इनको आपने ध्यान में रखना है. ओके, लेट्स मूव ऑन. So, अब हमारे ग्रैंडफादर की बात करते हैं. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. So as you can see, screen पे आपको साइड में जो पिक्चर दिख रही है, वहाँ पे जो ऑफ वाइट कलर में बना हुआ है, दैट इज अ मेंटल पीस. उसके नीचे फायर प्लेस है. बच्चों, पुराने जमाने में जब कुछ टाइम पहले ये सब चीजें हम लोग घरों में बनाई जाती थी, एंड ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगती थी, और ड्राइंग रूम में ज्यादातर ये चीजें होती थी. और उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट अपने घर का मेंबर होता था, जो प्रोबेबली डिसीज्ड होते थे, उनकी पिक्चर हम इसके ऊपर लगाते थे. सिमिलरली यहाँ पे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लगी हुई है, और इसको हम कहते हैं मेंटल पीस, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लगी हुई है. उस पोर्ट्रेट में हमें क्या दिख रहा है? ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. क्योंकि ये पूरी सेटिंग पंजाब की है, तो पंजाब में लोग ढीले ढीले कुर्ते पहनना पसंद करते हैं. जो ये ग्रैंडफादर है, ये भी सेम टाइप के कपड़े पहनते थे. ही हैड लॉन्ग बियर्ड, एंड जो उनकी लॉन्ग बियर्ड थी उससे उनकी पूरी चेस्ट कवर हो जाती थी. एंड ही लुक्ड 100 years old. बहुत बूढ़े लगते थे. जैसे कि ग्रैंडमा बूढ़ी लगती है, ऐसे ही ग्रैंडफादर भी बूढ़े लगते थे. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो जैसे उसको ग्रैंडमा को बिलीव करना, ग्रैंडमा के लिए बिलीव करना मुश्किल था कि ग्रैंडमा भी यंग एंड प्रिटी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है इनका, उसी तरह से ग्रैंडफादर के लिए भी बच्चों खुशवंत सिंह को ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल था कि वो भी यंग हो सकते हैं, उनके बच्चे और उनकी वाइफ हो सकती हैं. उनको तो देख के ऐसा लगता है कि इनके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं. ओके. एंड हियर अगेन, जैसे कि नंदिनी मैम ने आपको बोला, कंपाउंड वर्ड्स. ग्रैंडफादर मेंटल पीस ओवर हियर आर टू कंपाउंड वर्ड्स. रिमेंबर देम, यू आर गोइंग टू हैव अ ट्रीट विद देम, एंड ग्रैंडचिल्ड्रन टू. Okay, so we just saw the compound words. And now, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जैसा कि अभी बताया, पहले वो कह रहे हैं it was hard to believe, but now he is saying that it was almost revolting. Anjali, would you like to tell our students something about this? The thought was almost revolting. The thought was almost revolting. मतलब जो हमारा खुशवंत सिंह है, उनको ये बिलीव ही नहीं होता था. मतलब थॉट एक्सेप्टेबल ही नहीं हो पा रहा था, कि अग्रीएबल नहीं हो पा रहा था कि मेरी ग्रैंडमा यंग एंड प्रिटी भी हो सकती है. दिस इज व्हाट इट मींस, एंड रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स अगेन. Okay.
एंड बिगनिंग की स्लाइड्स में जैसे आपने देखा, ही वाज सेइंग हार्ड टू बिलीव, और यहाँ पे ही इज सेइंग इट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. She often told us of the games she used to play as a child. अब अक्सर ग्रैंडमदर उनको बताया करती थी कुछ ऐसे गेम्स के बारे में जो वो बचपन में खेला करती थी. तो बच्चों, आपने कभी ये इस तरह के गेम्स के बारे में सुना है, या कभी खेला है, या कभी देखा है खेलते हुए, जो पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर हैं? और इनफैक्ट इस कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे जो पिक्चर है उस पे तो गुरमुखी में या पंजाबी लैंग्वेज में इट्स रिटन गीते. तो शी यूज टू प्ले दीज गेम्स, पर उनको विश्वास करना मुश्किल है कि वो ऐसे गेम्स खेला करती थी. तो अभी तक उन्होंने क्या बोला था? हार्ड टू बिलीव, रिवोल्टिंग. और अब वो क्या कह रहे हैं? दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. उनके हिसाब से इस तरह के गेम्स जो हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, शायद आपने कभी अपने मदर से कभी इसके बारे में सुना हो, या अपनी ग्रैंड मदर से इनके बारे में सुना हो, या कभी उन्होंने बताया हो कि हम ये वाले गेम्स खेला करते थे. तो ये आप एक देख सकते हैं, ये गीटे वाला जो पिक है उसके ऊपर एक गेम है जो गर्ल्स खेल रही हैं. इसको कोक इलाची पाकी जमेरात आई जे, इस तरीके के नाम से इसको बुलाया जाता है. ये गेम तो शायद आपने अक्सर देखा होगा, स्टापू जिसको आम भाषा में कहा जाता है. तो इस तरह के गेम्स ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड्स के साथ बचपन में खेला करती थी. पर राइटर का कहना है, खुशवंत सिंह जी का कहना है कि दिस सीम्स क्वाइट एब्सर्ड, इलॉजिकल. वो मान ही नहीं सकते कि वो ये गेम्स खेलती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बड़े अनडिग्निफाइड, उन्हें लगता है ये तो बड़े फुलिश, अनडिग्निफाइड, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर शी इज सच अ डिग्निफाइड लेडी, और उनकी बोलचाल में, उनके हर काम के अंदर जो डिग्निटी नजर आती है, उन्हें लगता है कि ये गेम्स वो नहीं खेल सकती थी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स. और उनको वो क्या नजर आते थे, क्या लगती थी ऐसी बातें? फेबल्स, स्टोरीज, कहानियां ऑफ द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अ पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर, जिनको आम भाषा में कई बार लोग महात्मा या गुरुजी या और इस तरह के बड़े बूढ़े लोग जो कि इस तरह की कहानियां सुनाते हैं मॉरल लेसन्स के साथ. तो उन्हें लगता था ये सब कहानियों की तरह था. दादी माँ का इस तरह के गेम्स खेलना, या दादी माँ का बताना कि वो ये गेम्स खेला करती थी, वो उनको बिल्कुल कहानियों जैसे, फेबल्स जैसे लगते थे. बट बच्चों, एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पर जो हमें समझ में आई और हम बात कर रहे थे, वो ये कि ये गेम्स अगर आप देखें, इनमें कहीं कोई गैजेट्स नहीं है, कोई वीडियो गेम्स नहीं है, कोई मोबाइल फोन्स नहीं है, बट स्टिल दीज चिल्ड्रन, दीज किड्स आर सो हैप्पी. तो इसका मतलब खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि मोबाइल फोन हो आपके पास. It's not necessary you need to play video games or you need to have mobile phone gadgets to be happy. To be happy, you just need to be with your friends and play simple games. तो जब आप अपने फ्रेंड से अब मिले, तो try to enjoy such games. Go to parks and in your school as well. Try to enjoy these games instead of just enjoying yourself on mobile phones. Okay. So yes, Nandini ma'am rightly said PUBG जरूरी नहीं है खुश रहने के लिए और फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए. There are many more things that you can go out and do. Yes, so let's continue with the chapter. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. As you can see in the picture, दादी माँ थोड़ी सी शॉर्ट थी, थोड़ी सी फैट थी, और ओल्ड एज की वजह से उनकी जो स्पाइन थी वो थोड़ी सी मुड़ गई थी. She was slightly bent. She had a face whose where there were crisscross, मतलब बहुत सारे wrinkles, lines आ गए थे उनके face पे, और सब जगह से सब जगह थे. So no, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. So वो बोल रहे हैं कि मतलब हमको पक्का पता था कि ग्रैंडमा हमेशा से ऐसी ही थी. इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो अब इससे ज्यादा तो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. बट शी कुड नेवर हैड बीन प्रिटी. वो बोल रहे हैं प्रिटी तो नहीं होगी विद ऑल द स्मूथ स्किन एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यंग प्रिटी नहीं होगी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वो कहते हैं when the beauty lies in the eyes of the beholder. So जो हमारे खुशवंत सिंह है, उनको अपनी दादी बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उन्हें ब्यूटीफुल भी लगती थी. Oh, really?
Okay, and then Khushwant Singh moves ahead by saying she hobbled about the house in spotless white. अब स्टूडेंट्स मैंने जानबूझ के यहाँ पे हमारे पास एक पिक है. अभी आई एम नॉट शोइंग यू द पिक बिकॉज आई वांट यू टू इमेजिन. आप इमेजिन कीजिए जब मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्रैंड मदर है शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, क्योंकि क्योंकि काफी बूढ़ी हैं, वो बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप लोग भागते दौड़ते हैं या यंग लोग जो हैं जैसे चलते फिरते हैं वो नहीं चल सकती, वैसे बूढ़ी हैं, उनको थोड़ा मुश्किल से, थोड़ा जैसे आपने देखा हो कि घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें कभी स्टिक का सहारा लेके चलना पड़ता है या कभी दे होल्ड वॉल्स और फर्नीचर वाइल दे आर वॉकिंग, तो थोड़ा सा उन्हें सहारा लेके चलना पड़ता है. एंड अबाउट एंड इन स्पॉटलेस व्हाइट, और उनके कपड़े यूजुअली कैसे होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के वो कपड़े पहनती हैं, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उनका अक्सर उनकी वेस्ट पर, उनकी कमर पे रहता है, टू बैलेंस हर स्टूप, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में अक्सर उनके माला रहा करती थी. माला आपको मालूम होगा, जो बड़े बूढ़े लोग या दादी या दादाजी जो जपते हैं, माला को जपते हैं ना, तो उस माला को वो और घुमाते रहते हैं धीरे धीरे, उसको उनका जो जाप होता है वो करते रहते हैं, तो रोजरी जो है उस माला को कहते हैं. और मैं आपको पिक्चर एक बार दिखाती हूँ कि आपने ऐसा ही इमेजिन किया था. स्पॉटलेस व्हाइट एंड देयर इज अ रोजरी. इस माला को क्या कहते हैं, रोजरी, और इसको वो अक्सर जाप करते समय घुमाती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. और सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यहाँ पे ऑब्वियसली देखिए यही ब्यूटी है वोकैबलरी की, कि लॉक्स का मतलब यहाँ पे ताले नहीं है, लॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके बाल. और वो बाल कैसे हैं, सिल्वर, सिल्वर जैसे चांदी जैसे, बिल्कुल शाइनिंग वाइट बाल है पर उनके अंदर एक शाइन है. एंड लॉक्स मे बी क्योंकि वो थोड़े घुंघराले भी हो सकते हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. उनका जो फेस है, ऑब्वियसली वो बूढ़ी हैं तो उनके फेस पे वो ग्लो, वो ब्लश इस समय पर नहीं है, बट उनका और फेस पकड़ पकड़ इस झुर्रियां बहुत हैं. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. और उनका उनके लिप्स जो हैं हर समय कुछ जाप के तौर पे, या जो वो कुछ शब्द पढ़ती होंगी या कोई भजन पढ़ती होंगी, जो कि हर समय उनके होंठ उसके तरफ हिलते रहते हैं, बट सुनाई नहीं देता, इनऑडिबल, आप उसको सुन नहीं पाएंगे. तो जैसे मैंने भी बताया था, पकड़ इज रिंकल्ड, और इनऑडिबल है अनेबल टू बी हर्ड, सुना नहीं जाएगा बट उनके होंठ हिलते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. जैसे अभी अंजलि ने बताया कि शी वॉज नॉट प्रिटी. अब देखिए दोनों में फर्क है, प्रिटी और ब्यूटीफुल. प्रिटी मतलब आउटर अपियरेंस, तो कोई आउटर अपियरेंस में कोई सुंदर है आप उसको कहेंगे कि शी इज प्रिटी, बट ब्यूटीफुल में इट्स नॉट जस्ट द आउटर अपियरेंस, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. अभी आपको अंजलि ने बताया क्योंकि दादी उसको इतनी पसंद थी, तो ये सेइंग यस शी वाज ब्यूटीफुल. और वो क्या कह रहे हैं आगे, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. अगर आप अपनी आंखों को बंद करें और इमेजिन करें कि वादियां हैं, सुंदर वादियां हैं और पूरी बर्फ से ढकी हुई हैं, तो कितना खूबसूरत वो नजारा है. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ऐसा लगता है कि पूरी चारों तरफ एक खूबसूरती जो है वो फैली हुई है. तो इस ऐसे नजारे को, ऐसे खूबसूरत नजारे को आप प्रिटी कहेंगे या ब्यूटीफुल कहेंगे? ऑब्वियसली प्रिटी नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल, क्योंकि उस ब्यूटी के अंदर आपको एक शांति, ब्रीदिंग, पीस एंड कंटेंटमेंट. बच्चे बकर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं अभी, वैसे हमने आपको इसका मीनिंग बताया था, रिंकल्ड. मैंने अभी उसको स्लाइड पे फिर से एक बार फ्लैश किया है. स्टूप का मीनिंग पूछ रहे हैं. स्टूप अभी मैंने बताया था कि जब हम अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जैसे दादी जो हैं वो कमर पे हाथ रखा करती थी, तो उसको थोड़ा सा आगे हम झुक भी जाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, तो उसको जो है स्टूप कहा जाता है. ओके, आई होप ये दो आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे. आगे बढ़ते हैं. और लास्ट में जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इतनी खूबसूरत जो वादियां जैसे होती हैं, जिससे उनके अंदर से एक फीलिंग आती है, एक कॉन्टिन्यूस फीलिंग आती है, किस चीज की, पीसफुल, पीसफुलनेस की, एक शांति की.
और यही हमारी दादी जो खुशवंत सिंह जी की दादी हैं, और इस समय पर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारी दादी हमें लग रही हैं, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसे लगता था कि दादी इज फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उनके अंदर कोई भी किसी तरह की बेचैनी कभी उनको नजर नहीं आती थी। वो इतनी शांत, शी वॉज सो कंटेंटेड, शी वॉज ऑलवेज सो पीसफुल। एंड द वर्ड्स, हमने जो बात की थी कंपाउंड वर्ड्स की, ओवर हियर इट इज स्पॉटलेस कंपाउंड वर्ड। एंड नाउ इज द क्विज टाइम। अब देखते हैं कि आपने अभी तक कितना अच्छे से सुना, कितना अच्छे से समझा। लेट्स मूव ऑन with the questions. So first question is here on your screen. It was hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty because he did not consider her beautiful, regarded his grandfather more handsome, could not believe the stories of his grandmother, or the last option had only seen his grandmother as an old woman. So, my dear students, quickly tell me and let me and show me how well have you heard us, how well have you read so far. Quickly tell me the answers. First question, there are four options. Yes, what is the correct answer? And I guess yes, ma'am. The answers are already flowing in. I guess you can give them the right answers. Yes, all of you are correct. The correct option is he had only seen his grandmother as an old woman. Okay, so here's the second one. The author brings out divine beauty of his grandmother. अभी हमने discuss किया by comparing her to a snow-covered winter landscape, considering her beautiful like a fairy, regarding his grandfather as handsome, mentioning that her lips always moved in inaudible prayer. कैसे divine beauty को कैसे describe किया है? क्या example लिया था उन्होंने? Anjali, our students, I hope, are writing in the chat box. Yes, ma'am. Uh, Of course, yes. The chat box is flowing with uh, the answers. They are listening it very nicely. okay, so the answer is comparing her to a snow covered winter landscape. Well done, students. So let's continue with the story. मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने आंसर्स दिए. अब आगे चलते हैं. My grandmother and I were good friends. Why were we good friends? Let's see. The reason is my parents, when they were going out for the city to find out some work over there, they left me and my grandmother in the village. And because we were only two people left in the village, two of us were constantly together. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. Constantly together कैसे रहते थे वो हम आगे देखते हैं. Yes, we were constantly together because she used to wake me up in the morning and get me ready for school. अब दादी ही मुझे सुबह उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed me and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब वो जब मुझे तैयार करती थी तो सिंग सॉन्ग मैनर में कुछ कुछ अपने शब्द या अपने भजन बोलती रहती थी और मुझे तैयार करती थी साथ साथ. उन्हें लगता था कि शायद जब मैं सुनूंगा तो मुझे ये याद हो जाएंगी. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. पर कभी मैंने उसे याद करने की कोशिश नहीं करी. मोनोटोनस का मीनिंग लैकिंग इन वेरिएशन इन टोन. जैसे आप गा तो रहे हैं पर कोई बहुत अच्छी सुर में या सुरीले तरीके से नहीं गा रहे हैं, तो उसको मोनोटोनस सिंग सॉन्ग कह देते हैं. और साथ में बॉदर्ड, मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं था, ज़्यादा मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं थी उसको सीखने की. ओके, अगेन द येलो लाइन, सिंग सॉन्ग. अब सुबह उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं. अब उसके बाद क्या काम बचा? Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. So my dear students, पहले जब पेन और पेपर जिससे आजकल हम लोग पढ़ते हैं, गैजेट्स, टैबलेट्स, फोन्स, ये सब चीज़ें इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी. टैबलेट्स एंड फोन्स तो आए भी नहीं थे उस वक्त तक.
but even the pen and the paper was not that easily available to everyone. So उस टाइम पे क्या करते थे, as you can see on the left side, यहाँ पे एक तख्ती होती थी, wooden तख्ती, and they used to plaster it with multani mitti, and over it they used to write with ink. So the children had to carry ink pot and a pen which was also made out of wood. So that was the time, घर आते थे, जो टीचर ने पढ़ाया है उसे लर्न करते थे, देन तख्ती को अगेन प्लास्टर करते थे, फिर दोबारा स्कूल जाते थे. सो दैट वे द एजुकेशन यूज टू गो ऑन. सो ये सब काम दादी माँ उसके लिए ऑलरेडी करके रखती थी खुशवंत सिंह के लिए, और जब स्कूल के लिए रेडी हो जाते थे तो वो सारी चीजें एक बंडल में बंद करके वो खुशवंत सिंह को दे देती थी. अब बात बारी आती है स्कूल जाने की. पूरा रेडी हो गया. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल. सो स्टेल चपाती ली, रात की, स्टेल मतलब रात की रखी हुई चपाती, उस पर बटर लगाया, शुगर लगाई, उसे खाया, एंड देन दे यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. सो दादी माँ बड़ी अच्छी थी, उनको एनिमल्स से भी बहुत प्यार था, तो वो डॉग्स के लिए भी बहुत सारी स्टेल चपाती अपने साथ लेके स्कूल में जाती थी. And then my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब एक और भी रीजन था उनका साथ में जाने का, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल यहाँ पे मतलब है गुरुद्वारा, क्योंकि ये इसकी सेटिंग पंजाब की है, तो जो गुरुद्वारा होता है उसको भी टेम्पल कहा जाता है. तो दादी इसलिए जाती थी ताकि वो जो उनका पोता है जो खुशवंत सिंह है वो पढ़ेंगे और दादी गुरुद्वारे में बैठ जाएंगे. द प्रीस्ट taught us the alphabet. अब यहाँ पे प्रीस्ट किसके लिए यूज किया गया है? गुरुद्वारे के जो पुजारी होते हैं उनको पाठी कहा जाता है. वो हमें मतलब उस जमाने में जो पढ़ाई कराई जाती थी, कौन पढ़ाते थे? जो टीचर होते थे वो वही गुरुद्वारे के जो प्रीस्ट होते थे, जो पाठी होते थे, वही बच्चों को पढ़ाया करते थे. और क्या पढ़ाते थे? अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. उसमें उनको अल्फाबेट्स इंग्लिश के भी हो सकते हैं एबीसीडी, हिंदी के भी हो सकते हैं क ख ग, या पंजाबी में जो गुरमुखी में होते हैं उड़ा एड़ा. तो बेसिकली जो प्रीस्ट होते थे उनको उन अल्फाबेट्स लेटर्स को के बारे में बताते थे, उनके बारे में पढ़ाते थे, और प्रेयर होती थी. while the children sat in rows on either side of the veranda. अब बच्चों का जैसे बताया गया कि टेम्पल के साथ ही स्कूल था, जो वरांदा था, जो आंगन था, वही बेसिकली उनका स्कूल था. बच्चे दोनों साइड पे बैठ जाया करते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट. और कैसे, जैसे आपने देखा भी होगा और आपने भी अपने बचपन में इसी तरीके से पढ़ा होगा कि बच्चों को, जब छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो सिंग सॉन्ग मैनर में उनको थोड़ा गाते हुए उस तरीके से समझाया जाता है. और द प्रेयर इन कोरस, सब लोग मिलके प्रेयर किया करते थे या कुछ भजन या शब्द पढ़ा करते थे. माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी ग्रैंड मदर इन साइड गुरुद्वारे के अंदर स्क्रिप्चर्स का मतलब जो उनके ग्रंथ हैं, चाहे वो जपजी साहिब है या सुखमनी साहिब है, तो वो जो उनके ग्रंथ हैं वो अंदर बैठ के उनको पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का काम हो जाता था, मेरा स्कूल का टाइम हो जाता था, ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ में आया करते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और आपको अभी अंजलि मैम ने बताया था कि वो कुछ स्टेल चपातीस, रात की बनी चपातीस को इकट्ठा करके लेकर जाया करते थे. ग्रैंड मदर चपातीस को अपने साथ एक बंडल में लेकर आया करती थी. और उन्हें कौन मिलता था वहां पे? डॉग्स. They followed us to our home, growling and fighting with each other. अब जैसे जैसे हम घर जाते थे, दादी रास्ते में डॉग्स को चपातीस डालते हुए जाती थी. और अक्सर डॉग्स क्या करते हैं चपातीस के लिए? देवर ग्राउलिंग, एक दूसरे के ऊपर फाइटिंग भी कई बार होती थी, ग्राउल भी करते थे. एंड वी यूज टू थ्रू चपातीस टू देम, जो उनको चपातीस डाली जाती थी उनके लिए वो इस तरीके से करते थे. तो अब हमने ये देखा कि ग्रैंड माँ और द चाइल्ड खुशवंत सिंह, दे वर ऑलमोस्ट टुगेदर, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे यूज्ड टू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. अब आगे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. Sent for us means they called us. उन्होंने हमें बुला लिया, शहर बुला लिया. That was a turning point in our friendship. अब फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्यों है ये हम पढ़ते हैं. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम की अभी हम आपको पिक्चर दिखाएंगे. वी शेयर द सेम रूम. माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. आई यूज्ड टू गो
to an English school in a motor bus. तो पहले तो दादी साथ में रहती थी, रेडी करती थी, फिर स्कूल भी जाती थी और वापस भी साथ में आते थे. बट अब क्या हुआ, बच्चा जाने लग गया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल इन अ मोटर बस. Right, so school bus में वो जाता था. Now grandmother could not come with him to the school, and turning point again is a compound word. Don't forget. And what happened after this? There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पर जब वो शहर आ गए हैं, यहाँ पर वो साथ भी नहीं जा रही हैं स्कूल के में उसको छोड़ने के लिए, उसके साथ उसको वापस घर लाने के लिए. तो नेचुरली उनको वो डॉग्स भी नहीं वहाँ पे मिल रहे हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कैसे शुरू किया अपना वो तरीका, जैसे कि वो एज अंजलि मैम सेड शी वाज वेरी काइंड टू डॉग्स. नाउ शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज. तो आप पिक में देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ग्रैंडमदर जो है स्पैरोज को दाना डाल रही हैं इन द कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड आंगन, जो घर का आंगन था वहां पे कई चिड़ियां इकट्ठी हो जाती थी और ग्रैंडमदर उनको दाना डाला करती थी उनके सिटी हाउस में. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अब जैसे जैसे कुछ साल आगे बढ़े, हम लोगों का जो जितना पहले एक अच्छी बॉन्डिंग थी, उस तरीके से उतना रोज मिलना या उस इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं हुआ. हाँ, अभी भी वो मुझे सुबह उठाया करती थी, स्कूल के में रेडी होने के लिए हेल्प करती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मुझसे पूछा भी करती थी कि मैंने स्कूल में क्या पढ़ा. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें वो पढ़ रहे थे. ग्रेविटी क्लास 8 या 9 में जब आप पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. तो ये सब चीजें वो अपना दादी से डिस्कस किया करते थे. दिस मेड हर अनहैप्पी. अब इन सब चीजों से शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी. व्हाई? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब वो मुझे, पहले तो स्क्रिप्चर्स और ये सब पढ़ते थे या अल्फाबेट्स पढ़ते थे तो दादी हेल्प कर सकती थी. अब इन सब नई चीजों में या वेस्टर्न साइंस या इंग्लिश वर्ड्स में वो मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. साथ में एक कारण और भी था कि ये सब चीजें जो हमें स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, वो इन सब के बारे में ना ज्यादा जानती थी और ना ही वो ज्यादा कन्विंस्ड थी, या ये कहिए कि वो बहुत ज्यादा इनको पसंद नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और इनफैक्ट वो बहुत ही परेशान रहती थी कि स्कूल में उनको स्क्रिप्चर्स के बारे में या उनके जो धर्म ग्रंथ हैं या उनके जो ऐसे ग्रंथ जैसे मैंने बात किया था जपजी साहिब या सुखमनी साहिब, वो सब स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते. So अब one day, अब final चीज है ये. One day I announced that we were given music lessons. अब music lesson अगर हमें आज के टाइम में दिए जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, because there are so many reality shows और बहुत सारे हमारे famous आर्टिस्ट हैं जो कि म्यूजिक में उन्होंने पूरे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है. सो अब अगर हमें कोई ये कहे कि हमें म्यूजिक लेसन्स मिलेंगे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारी फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं. बट ग्रैंडमा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड. वो थोड़े पुराने जमाने को बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पे क्या था, थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट था. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing but a silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. So grandma को लगता था कि जो gentle people हैं, वो उन लोगों के लिए music ठीक नहीं है, because music is only for beggars and harlots and those people who keep on roaming around. उनको ये concept नहीं समझ में आता था कि music से भी आप अपना livelihood earn कर सकते हो. और जो लोग music से अपना livelihood earn करते थे, उनको ग्रैंडमा थोड़ा अच्छा या जेंटल पीपल या सिविलाइज पीपल नहीं मानती थी. तो जब ग्रैंडमा को पता चला कि खुशवंत सिंह को म्यूजिक सिखा रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, एंड उन्होंने कुछ कहा नहीं. उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मत सीखो, या शी डिड नॉट पुट अप अ रिवोल्ट, बट शी सेड नथिंग.
एंड दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि जब वो बस उन्होंने मुझसे बोलना ही बंद कर दिया और उनका साइलेंस की वजह से ही हमें पता चल गया दैट शी इज डिसअप्रूविंग ऑफ व्हाटएवर आई एम लर्निंग नाउअडेज. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उन्होंने मुझसे बात करना बहुत एकदम कम कर दिया. Okay, so quiz time again. The third question in the row. The narrator and the grandmother were good friends in the village as she woke him up every morning and got him ready for school. B. She gave him breakfast, got him his slate, ink pot, and accompanied him to school. They fed the dogs together on their way back from school. And D. All of the above. जल्दी से बताइए वो अच्छे दोस्त क्यों थे? Narrator. Narrator is Khushwant Singh and his grandmother. They were good friends. Why? Okay. So the answer is D. All of the above. Yes, the students are writing. Vijay and Geeta. There are many students who are writing the and giving correct response. Elma Khan. Okay, let's move ahead. Now, the fourth question is the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school because abhi first wala disturbed her, remember. She wanted to help him with his lessons in English. Second option, the author was not being given music lessons. There was no religious teachings about God and the scriptures. He went to school by a motor bus and she missed feeding dogs. So, which one out of all these is the correct answer? Quickly tell me in the chat box. Let your fingers run as fast as they can and quickly give me the answers. So, yes, what is the correct answer? And of course, the answers are already flowing in, Nandini ma'am. Yes. Let's show what is the correct answer. There were no religious teachings about God and the scriptures. God और scriptures के बारे में उनको कुछ नहीं, prayers वगैरह कुछ नहीं सिखाया जाता था. That's why grandma was disturbed. And of course, well done. Here are minions telling you you're all doing it great. Let's move ahead. And now, when I went up to university, अब बड़े हो गए हैं खुशवंत सिंह, स्कूल से अब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है. I was given a room of my own. अब उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया गया, अलग कमरा दे दिया गया. पहले अपनी दादी के साथ रहते थे, अब अपना अलग कमरा मिल गया. The common link of friendship was snapped. तो हम दोनों की फ्रेंडशिप में, दोस्ती में एक जो कॉमन लिंक था कि अभी तक एटलीस्ट वो कमरा शेयर कर रहे थे, that was cut. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion, अकेलापन, away from people, अकेलापन. अब वो बिल्कुल अकेले रहने लगी, बिल्कुल अपने आप में ही बिजी रहने लगी. And she accepted this loneliness और इस अकेलेपन को उन्होंने accept कर लिया, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, but उन्होंने इसको accept कर लिया. She rarely left her spinning wheel. अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनिंग व्हील, ये स्पिनिंग व्हील है. स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब वो किसी से भी बात नहीं किया करती थी या बहुत कम बात करती थी, ज्यादा समय किस पे, अपने स्पिनिंग व्हील पे बिताती थी. स्पिनिंग व्हील बच्चों आपको मालूम होगा कि जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉटन है, दादी माँ के पास में ये कॉटन है और कॉटन की हेल्प से वो यार्न स्पिन कर रही हैं, धागा बना रही हैं. ये पतला सा धागा जो मैंने अभी सर्कल आपको दिखाया है, इसके बीच में वो पतला सा धागा है. इस कॉटन की हेल्प से ये कॉटन ऐसे ऐसे मूव करता है और धागे के बंडल्स वो बनाते रहती हैं. ये जो ये है इधर यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, वो जो बंडल है, जो धागा होता है यान, वो यहाँ पे एक बंडल के फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है. तो शी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्पिनिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. मतलब सुबह शुरू होती थी और उसके बाद सनसेट तक उनका स्पिनिंग व्हील ही वो ज्यादातर किया करती थी. और एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ में क्या चलता रहता था उनके, अपने भजन, अपने शब्द, वो साथ साथ अपनी जो स्पिरिचुअल उनके भजन हुआ करते थे वो गाती रहती थी. एंड हियर अगेन द येलो लाइन, याद है क्या थी येलो लाइन?
स्पिनिंग व्हील अगेन दो वर्ड्स हैं पर दोनों वर्ड जुड़ के एक अलग नया शब्द बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड। सनराइज अ कंपाउंड वर्ड, सनसेट अगेन अ कंपाउंड वर्ड। याद रखिएगा, ये अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे इसके बारे में। And just look at the face of the grandmother. She's looking so happy. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. Dogs nahi hai, sparrows ko feed kar rahi hai. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collect around her, creating a veritable bedlam of chirping. So, veritable means alag-alag, bedlam of chirping matlab जो chirping की आवाज है. So that was the scene of the evening, and grandmother used to be surrounded by so many birds and sparrows and many more. Next text, we're going to continue. Some came and paused on her legs, others on her shoulder. Some even sat on her head. She smiled, but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. So वो जो birds को वो feed करती थी, that chirping, that bedlam of chirping, veritable, वो grandma का happiest half hour होता था. She used to enjoy doing that. And Okay. again, there's a little quiz waiting for you. Okay. And you had been seeing a lot of compound words. So here is an activity of those compound words you just witnessed while reading this chapter, while reading the portrait of a lady. So we kept on underlining those words with yellow marker, with yellow color, and now is the time when you have to respond while using your recollection of those compound words. So, Anjali, shall we begin? Yes, ma'am, we are all set. Okay, so please keep helping me by telling us whether our students are getting and giving responses. Yes, sure, ma'am, Okay. I'm there. Okay, so students, here is a passage, a paragraph with few blanks, and in the box below, box which is glowing, shining, you see there are few words. And what are these words? Compound words. अभी आपने जो चैप्टर में पढ़े, ये वो compound words हैं. आज हमारी एक एक्टिविटी हमने ग्रामर से रिलेटेड रखी है, क्योंकि आपके फर्स्ट सेशन में अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स दे टॉक्ड अबाउट ग्रामर एंड वोकैबुलरी। जब मैम ने पूछा था कि आप इंग्लिश में क्या ज्यादा सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि हम ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं। तो वी थॉट वी मस्ट प्रिपेयर एन एक्टिविटी फॉर यू बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो हियर इट इज। सो शैल वी बिगिन? नेहा स्टेज इन हर कॉलेज हॉस्टल। नेहा अपने कॉलेज हॉस्टल में रहती है। शी डिसाइड्स टू विश हर डैश पर्सनली ऑन हर बर्थडे। अब किसको विश करना चाह रही हैं? मैम आंसर्स ऑलरेडी आ गए हैं. Okay. Telling them about the activity, answers started flowing in. So Okay, it seems that they are very taking keen interest in the activity and in the lesson. That's why they are giving answers. I think Vinay, Rajiv, they have given the correct answer. The answer is grandmother. So she wanted to wish her grandmother personally on her birthday. As soon as her classes are over, she hires, and ये तो बहुत easy है, and लगा है तो obviously आगे का जो word है वो किसी वॉल से शुरू होना चाहिए, ए ई आई ओ यू से शुरू होना चाहिए। और बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। इट ओके, ऑटो रिक्शा। सो शी हायर्स एन ऑटो रिक्शा टू रीच हर ग्रैंडमा's house before, shall we see, before yes, for sunset. Yes, answers are coming. Okay, so before sunset, she buys a lovely bouquet of flowers from a florist. फ्लोरिस्ट होते हैं जो कि आपने देखा होगा कि कई सारे ब्यूटीफुल बुकेज लेकर होते हैं मार्केट प्लेस में या कहीं किसी ओ आई वाज गोइंग टू गिव यू एन आंसर एट दी कहाँ होते हैं? मार्केट में होते हैं या कहीं पर किसी मोड़ पर होते हैं। तो she bought a beautiful bouquet from a florist at the turning point just before her grandma's house. तो grandma के घर से पहले ही एक जो मोड़ आता था
उसने वहां से एक बहुत सुंदर सा बुके खरीद लिया. Her grandma was already waiting for her at the gate. Neha gets down and wishes her grandma in a what? कैसे विश किया होगा? Quickly, quickly, give us the answers. We're waiting. Uh, and the answers have started And here pouring. are the answers. Yes, ma'am. Okay. Doing great. Ye. She wishes her grandma in a sing-song manner, "Happy birthday to you," like this. So, And you have already given the answers of the 10th blank. okay. Okay. So both of them sit in the कहाँ बैठे होंगे दोनों to enjoy the tea together in the courtyard. Good, yeah. She compliments her grandmother for her. अब grandmother का घर कैसा था? Spotless. The miniature of a एक छोटा सा miniature क्या होता है जो शो पीसेस होते हैं कई बार तो वो एक छोटा सा एक miniature था किस चीज का miniature था of a spinning wheel that decorated the. So we have got already got the answers. So I won't take much time. Already बच्चे बता चुके answers. You know the answers. So she decorated the mantelpiece. That spinning wheel was decorated on the mantelpiece. Catches her attention, and she asks her grandmother about it. And for the next, last but not the least, half hour, the grandma shares with her the story behind this gift. तो कैसी लगी ये एक्टिविटी बच्चों को wherein you read the compound words in the chapter while you were reading the chapter and now you used those compound words to fill in the gaps. I hope it was interesting. So congratulations for all those to all those who had given correct responses. And here is the homework, because every time you read a class, you read a chapter, you've got to do something. So this one is really interesting one. Try doing it and show it to your teachers. Click the screenshot. आपको एक conversation build up करना है with your grandmother, discussing the incidents that happened in the school that day, probably today or any day जब आप school गए थे, you came back and then you're discussing it with your grandmother. So initial dialogue, two dialogues हमने आपको दे दिए हैं. How was your day at school? And the child, you can keep your name at the place of Neha and you can continue the conversation. It was good, grandma, and today you can continue whatever you have experienced and you are discussing it with your grandmother. It can be funny, it can be serious. Anyway, it's all up to you. Complete choice is yours. So take the screenshot, show it to your teachers, and thanks for being such a good audience. Thank you all. Thank you, students. Thank you, teachers, and all those who were watching the session live on YouTube. Thank you all.